On this World Literacy Day today, on the International World Literacy Day, I welcome you all to the platform RN Talks. RN Talks में हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं so that हम सारे टीचर्स, मेंटर्स, स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छा काम कर सकें. This is basically a platform which has been oriented for the students as well as for the teachers, for the youth, for the parents. यहाँ पे हम लोग सब लोग कुछ ना कुछ सीख सकते हैं. So आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं उन्नति, which means progress. So उन्नति क्या है मैं बताती हूँ आपको. उन्नति एक ऐसा इनिशिएटिव है जो 3 लेडीज ने मिलकर शुरू किया था. आज से 5 साल पहले उन्नति का बीज 3 लेडीज ने रखा था जिनका नाम था मिसेस अनीता शर्मा, मिसेस निधि सिंघल, शिरीन वर्धान शर्मा in sector 41 Noida. Since that day, they have been working diligently to teach the underprivileged children, and they have not only focused on the curriculum but also on the co-curricular activities. Even though through the COVID times, they have not just given up. In fact, through these tiring times and testing times, they even though they suffered a setback, they overcame every hurdle and they started tutoring their students through WhatsApp. और टेक्नोलॉजी का सही मायने में फायदा उठाना यही उन्नति ने किया. WhatsApp है. Instead of spreading wrong messages, wrong propagandas on WhatsApp, उन्नति ने शिक्षा को फैलाना शुरू किया. बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट को देखते हुए उन्नति ने हर तरीके का फेस्टिवल, जितने भी फेस्टिवल्स इंडिया में मनाए जाते हैं हमारे दूसरों के, सब तरीके के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया है. अपने बच्चों को उनकी फेस्टिवल्स के बारे में नॉलेज दी है, ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स की हैं, और यही नहीं, हर बच्चे ने बहुत ही जोश और एंथुजियाज्म के साथ वहाँ पार्टिसिपेट भी किया है. प्राइजेस भी जीते हैं, कैश प्राइज भी जीते हैं, ई सर्टिफिकेट्स भी उनको मिले हैं. एंड ऑल दिस दे हैव डन ऑनलाइन, नॉट ऑफलाइन. सो जहाँ चाह है वही राह है, मैं यही कहती हूँ, और यही काम उन्नति ने करके दिखाया है. उनकी इस प्रोग्रेस को देखते हुए बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े और अपना कीमती समय निकाल के देने लगे उन बच्चों के लिए जिनके पास कुछ नहीं है पर पढ़ने की, सीखने की चाह और इच्छा है. 10 of those ladies are from Noida, Delhi, Alwar, Bihar. That is Ms. Nidhi Asthana, Ms. Ekta Sehgal Malhotra, Ms. Sudha, Kanchan Hira Nandani, Pratibha Sharma, Mrs. Usha Vardhan Sharma, Aditi Shrivastava, Karuna Madan, Neetu Varshne, Nutan Bala, and one of them is from Australia, that is Megha Vadhan Sharma. Every day the kids are learning something new from their teachers and not wasting their precious time and energy, and they learn to do something constructive. उन्नति के 2 बच्चे जो हैं उनको ब्रांड मैस्कट्स के लिए चुना गया है, पॉपुलर वर्चुअल शो, जहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने थॉट्स, अपनी कम्युनिकेशन को बाकी बच्चों के साथ शेयर करने का, एक्सचेंज करने का. In addition to that, the mothers who have been providing education to their wards at Unnati got felicitated on the same platform of
on an online platform of Motherhood Club. मदरहुड क्लब भी एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारी माताओं को सम्मान किया जाता है उनके काम के लिए, जो वो सारा दिन बच्चों के साथ लगे रहते हैं, बच्चों की अच्छी परवरिश करते हैं, उसी सब के लिए मदरहुड क्लब ने इनको सबको सम्मानित किया था, सब माताओं को. And on this Independence Day, Unnati's each and every student performed live in front of a virtual audience, and this was an absolutely new experience for them. Recently, one of their students got an opportunity to express his thoughts on the platform of Kiddo Mentoring Talk Show. He was appreciated by one and all. In short, Unnati is aiming to transform the children into an asset for the nation through this initiative, and I'm sure that it is going to bring good fruits, and these children are going to shape our nation into a better future. So on our platform today, we have guest Shireen Vadhan Sharma, who is the Chief Education and Operations Officer, Anita Sharma, who is the Chairman, Nidhi Singhal, President, Nidhi Asthana, Vice President and an art teacher, Megha Sharma, President, Ekta Sehgal, who's Chief Marketing and Finance Mentor, Usha Vardhan Sharma, Editor-Chief and Teacher, Pratibha Sharma, who's a teacher, Kanchan Hiranandani, teacher. I think I mentioned Pratibha Sharma's name. If I haven't, I'll repeat again. Pratibha Sharma, Karuna Madan, Aditi Shrivastava, Neetu Varshne, and Nutan Bala. They all are teachers. So today we will be discussing a few things over here which will be covering most of the tiny things like education in COVID times, problems they have faced while conducting online classes, their achievements in these COVID times, and how they have tackled the obstacles they have come their way, as well as the future plans of Unnati. So don't forget, अगर आप हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे साथ जुड़िए, एंड मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको घाटे का सौदा बिल्कुल नहीं कहेंगे, and you are really going to enjoy yourself over here. So most of the participants have joined over here. I would like to ask Shireen to unmute herself. Shireen, please unmute yourself. Hello, good evening, everyone. Good evening, Shireen. How are you? Yeah, I'm fine. I hope my voice is not echoing. No, it's not. You're clear. Okay. First of all, ma'am, thank you so much for having us on your show, ma'am. You're welcome. And the kind of work जिसे आप कर रहे हैं बच्चों के साथ, and हमारा भी educational platform है, it gives me immense happiness कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और जो आप काम कर रहे हैं हम भी आगे तक लेके जाएं ताकि दूसरे लोग इससे प्रेरित हो और आपके साथ और ज्यादा लोग जुड़ सके. Thank you so much, ma'am. It really means a lot. मैम मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब कोविड आया, so I got a circular from my own kids school कि उनकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगी. तो मुझे ये लगा कि जिन बच्चों को मैं निधि मैम और मेरी मदर इन लॉ 5 साल से पढ़ा रहे, उनका क्या होगा. मुझे ये बात इतनी ज्यादा डिस्टर्ब कर रही थी कि मुझे ये लगा कि शायद सब कुछ खत्म हो गया. बट मैम आपको पता है, कभी कभी बच्चे ही आपको होप देते हैं. मेरे स्टूडेंट्स मुझे फोन करते थे, मैम हमारा क्या होगा, मैम हमारी कोई पढ़ाई नहीं होगी, मैम हमारे पास बुक्स नहीं है, मैम कैसे करेंगे. और मुझे आई यूज्ड टू हैव स्लीपलेस नाइट्स. मुझे लगता था कि मैं क्या करूं. फिर सडनली एकदम से ख्याल आया कि क्यों नहीं व्हाट्सएप यूज करें. इनिशियली मुझे भी बड़ी हेजिटेशन होती थी क्योंकि मैंने कभी अपने स्टूडेंट्स के साथ में व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स नहीं करे.
दो मुझे बड़ा शौक है कि मैं अपने स्टूडेंट्स की वीडियोस बनाऊं, उनकी फोटोग्राफ्स लूं, और मैं उनके साथ पहले से ही शेयर कर रही थी, तो आई वाज हैविंग देयर नंबर्स, बट आई नेवर यूज्ड व्हाट्सएप टू गिव देम वीडियो कॉल। तो हमने ऐसे क्लासेस शुरू करी। जब शुरू करी तो बुक्स नहीं थी, फिर एनसीईआरटी की बुक्स ढूंढी, उनके पेजेस का स्क्रीनशॉट लेते थे, उन बच्चों को देते थे, पीडीएफ फाइल्स ढूंढते थे, उनको भेजते थे। बच्चों को पीडीएफ फाइल्स खोलना नहीं आता था, हमने उनको वो भी गाइड करा। स्क्रीनशॉट्स लेना नहीं आता था तो उनको गाइड करा। फिर उनको धीरे धीरे बुक्स मटेरियल्स प्रोवाइड करे। जब थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ, फिर बच्चों ने भी अपने आप से बुक्स खरीदे, और ऐसे मैम हमने इस लॉकडाउन पीरियड में बच्चों को पढ़ाया। तो आप लोग को बुक्स के साथ प्रॉब्लम नहीं होती थी, बुक्स कैसे देंगे बच्चों को? मैम मैंने देखिए, इनिशियली तो मैम सब प्रॉब्लम आई मैम, क्योंकि मैम देखिए जैसे जो प्रिविलेज क्लास है उनको मैम सारा जो रीडिंग मटेरियल था, जो भी स्टडी मटेरियल था, वो सब पीडीएफ फाइल्स और पीपीटीज में मिल जाता था उनके क्लासरूम्स में। डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, जितने भी डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं जिसपे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उनको वो सब मिलता था। हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तब हम जब तक हमारे को रीडिंग मटेरियल नहीं मिल रहा था, तो वी वर फोकसिंग ऑन देयर ग्रामर पोर्शन। जैसे निधि सिंगल मैम है मैम, वो बच्चों को हिंदी ग्रामर में उनको पढ़ा रही थी। फिर मैंने सोचा कि मैं चलो कुछ इंग्लिश या कुछ मैथ्स के कंसेप्ट उनको समझाती हूँ जिसमें वो वीक थे। ये टाइम है जिसमें हम उनकी रीडिंग स्किल को भी इन्हांस कर सकते हैं, हमारे पास रीडिंग मटेरियल तो होता ही है। तो हमने इनिशियली फर्स्ट 2-3 मंथ्स ऐसे ही निकाले, जब तक कि हमारे को उनकी टेक्स्ट बुक्स का नहीं मिला। राइट मैम। सो हमारे साथ आई कैन सी उषा वर्धन मैम भी है इधर। मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। वेलकम मैम। हेलो रंजीता। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। उस दिन काफी लेट ज्वाइन हुए थे एंड थोड़ा वीडियो भी थोड़ा सा फजी सा था। सो जिनको नहीं पता है उनको मैं बताना चाहती हूँ कि उषा वरदान मैम को 5 सितंबर पे हमने एग्जेम्पलरी एकेडमिशियन अवार्ड के साथ हमने ऑनर किया था बिकॉज ऑफ हर लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ teaching and academics and grooming and nurturing students. So मैम ये तो मैंने आपके बारे में बता दिया, आप तो बताने वाले नहीं थे, मैंने ही बता दिया। Like my daughter, she is into this new venture and now it's taken up a nice shape and a very good shape. I'm teaching 2 maids. You know, Okay. one is a cook and another one is a domestic helper. Right. तो पूजा और रेनू जो है, इनका फर्स्ट टाइम में मुझे लगा मैं इनको कैसे बताऊं, ही शी से शुरू करना है, इज वॉज से शुरू करना है। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। पर इनमें से एक लड़की है पूजा, had she been in a world of opportunity, she would have become a great scientist. इतना अच्छा उसका पिकअप है, इतनी अच्छी तरह से वो यूज करती है। मतलब sometimes I find problem with 12th class students, but I never found problem with this girl. इतना, जैसे मैंने उसको बोला कि तुम्हारी कॉलोनी में किसकी शॉप है, कहती है हमारी कॉलोनी में पंसारी की दुकान है और बनिए की दुकान है। ऐसे उसको क्या बोलते हैं। एक बार ही बताया उसको ग्रोसर है एंड नेक्स्ट टाइम शी यूज दोस वर्ड्स। किसी के लिए भी कोई भी छोटी सी चीज बताई जाए, मतलब इतना दुख होता है कि पूजा को कम से कम किसी अपॉर्चुनिटीज कोई इसको फ्रेम कर सके या इसको शेप कर सके। शी इज नॉट मेंट फॉर दिस वर्ल्ड, बट अनलकीली शी इज बोर्न इन दिस वर्ल्ड, but she is doing very well. Now she has written an application in English to me. मुझे एप्लीकेशन लिख करके दी है when she is going out, and then she says, मैम मैं हिंदी में एप्लीकेशन भेजती हूँ अपने बच्चों की, आई वांट कि मैं अब आपके पास पढ़ रही हूँ तो मैं इंग्लिश में एप्लीकेशन भेजूँ। तो little words I say, you can converse with your husband, you can say to your children,
जब बाहर जाते हैं ऑल द बेस्ट, जब घर से बाहर आते हैं हाउ वाज योर डे, तो अब वो सब कर रही है। अगर आपको मैं उसका वो दिखाऊं 5 मिनट बात करके, यू कैन मेक आउट दैट हर पिकअप इज एक्सीलेंट। सेकंड गर्ल, शी इज स्लो but she's also picking up. Agar each one of us teaches one person, I think illiteracy would be eradicated from the society, and in True, true ma'am. sense, we'll be able to celebrate the literacy day in this world with great pride. सच है मैम। आज लिटरेसी डे है और आज आप जैसे सारे गुरु यहाँ पे हैं, तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आई वुड लाइक टू इनवाइट अनीता शर्मा मैम, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ उन्नति। अनीता शर्मा, अगर आप हैं तो आप प्लीज अपने आप को थोड़ा अनम्यूट कर दीजिए, एंड यू कैन स्विच ऑन योर वीडियो। अनीता शर्मा, anyway, she's not here. We'll take her up later. Nidhi Singhal is there. I can see Nidhi Singhal. Please unmute yourself, and अगर आप वीडियो पे आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, and नहीं आ सकते तो no problem, we can still manage. Your voice is good enough. Nidhi Singhal. Nidhi Singhal ma'am, are you there? Never mind, we'll come back later. Nidhi Asthana, Pratibha Sharma is there. Pratibha Sharma, Nidhi Asthana is there. Yeah, Pratibha Sharma, पहले आपसे बात करते हैं और फिर निधि शर्मा से, निधि अस्थाना मैम से बात करें। मैम प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए। हेलो एवरीवन, एक्चुअली आई एम न्यू इन उन्नति। मुझे अभी अराउंड 3 मंथ्स पहले शिरीन ने कांटेक्ट किया था, एंड इसने प्रपोज किया कि आप ऐसे कर सकते हैं, कुछ बच्चे हैं जिन्हें आप पढ़ा सकते हैं। तो आई फाउंड इंटरेस्टिंग, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं अपनी तरफ से अगर कुछ दे सकती हूँ बच्चों के लिए कर सकती हूँ, इट्स वेरी गुड। तो मैम ये बताइए, कोविड में आपको एजुकेशन चैलेंजिंग तो था, मैं ये नहीं बोलूंगी नहीं था, कितना चैलेंजिंग था एजुकेशन, माने बच्चों को लेके जाना? जैसे शिरीन ने बताया अपना नजरिया, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एजुकेशन इन कोविड टाइम्स कितना चैलेंजिंग है आप मेंटर्स के लिए? कोविड में एक्चुअली क्या है कि बच्चों का इंटरेस्ट जो है, मोटिवेशन जो है वो बहुत गिर गया है। पहले क्या होता है कि पहले बच्चे ऑफलाइन स्कूल्स जाते थे, वहां मिलते थे बच्चों से, टीचर से इंटरेक्शन होता था, फिर वो उनको थोड़ा मोटिवेट होते थे कि कोई भी काम है तो उसे अच्छे से करना है, लर्न करना है, टेस्ट है देना है। अभी क्या हो गया, ऑनलाइन जब से हुआ है तब से क्या है, बच्चे भी थोड़े से बहुत केयरलेस हो गए हैं। ठीक है, मैम ने होमवर्क दिया है, ठीक है हम आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे। इस तरीके से उनका मोटिवेशन जो लेवल है ना वो बहुत कम हो गया है। हम लोग को मतलब बार बार उनको मोटिवेट करना पड़ता है, नहीं आपको ये लर्न करना ही है। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आई है वो है राइटिंग में, बच्चों ने लिखना छोड़ दिया है। ऑनलाइन क्लासेस में क्या है, मैम पढ़ाती हैं, बच्चे सुन लेते हैं, ठीक है काम किया नहीं किया तो वो मतलब सबमिट करेंगे नहीं करेंगे। अब हम लोग भी बच्चों को ज्यादा फोर्स तो कर नहीं सकते। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, मोटिवेशन है, इंटरेस्ट भी थोड़ा कम हुआ है। रीइंफोर्समेंट मेरे को लगता है बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। जैसे कि हम क्लासरूम्स में बैठते थे, जब 1-to-1 होते थे तो बच्चों को कोई भी स्किल को रीइंफोर्स करना तब ज्यादा आसान होता था, और अब वो कहते हैं ना पकड़ से छूट जाते, पकड़ में ही नहीं आते मैम, छूट क्या जाते हैं, पकड़ में ही नहीं आते। जैसे बुलबुल विद्या मंदिर का एक बहुत माने वो अच्छा वीडियो डालती है वो लेडी, एंड उसमें दिखाते हैं ना वो टीचर, नो इश्यूज, नेटवर्क इश्यूज, नो इश्यूज। सो कई बार होता है बच्चे बदमाशी भी कर जाते हैं, और पर हाँ, आप लोगों के बच्चे जो हैं वो आई थिंक अपने अंदर से सेल्फ मोटिवेटेड हैं विद मेंटर्स लाइक यू। सो यहाँ पे थोड़ा सा काम आई थिंक आसान हो जाता है, इसलिए बिकॉज बच्चों को आधे मोटिवेटेड वो खुद है, और कुछ बाकी आप लोग आगे ले जाते हैं वहां से उनको। जी।
राइट मैम, हमारे साथ और जुड़ रहे हैं निधि अस्थाना मैम. इज शी देयर? आई वुड लाइक टू सी. राइट मैम, निधि अस्थाना मैम, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज. हेलो मैम, वेलकम नमस्कार वेलकम. सभी को नमस्कार। मैम आप थोड़ा सा कैमरा के आंख के अंदर देख लीजिए. हाँ. एक्चुअली नहीं, एक्चुअली इट्स नॉट मैम, अ प्रॉब्लम. वो लैपटॉप अलग हाँ होता है और कैमरा अलग जगह होता है. आई ऑल्सो फेस द सेम प्रॉब्लम. मेरा लैपटॉप नीचे और कैमरा ऊपर है, तो मैं देखने के लिए नीचे देखती हूँ, फिर मैं ऊपर देखती हूँ. एक्चुअली मैं डेस्कटॉप से क्लासेस लेती हूँ, तो मेरी सेटिंग है ना बोर्ड पे सीधा डायरेक्टली होती है. दिस राइट इज राइट. हाँ, तो आई हैव टू कैमरा. एक कैमरा मेरा ऊपर है, जब मुझे डाउन करना होता है तो ये इन दिस वे, ये दिस मतलब बच्चों को मैं नहीं दिखती हूँ. एक मिनट मैं आपको चेंज करके दिखाती हूँ. इन दिस वे ये मेरा डाउन कैमरा है कि अगर मैं राइटिंग प्रोसेस कर रही हूँ तो ये, तो मैं सामने कैमरे पे आ नहीं पाती हूँ. समटाइम फेस टू फेस नहीं हो पाती नहीं मैं. हो पाता है. आई कैन अगर मैं इधर देखूंगी तो मैं आपको नहीं देख पाऊंगी. जी मैम. राइट. सो मैम, सिंस आपका बोर्ड भी रेडी है, सो जी. एक छोटा सा डेमो आप दे सकती हैं क्या? एक्चुअली मैं ड्राइंग टीचर हूँ मैम. हाँ. तो मैं जैसे बच्चों को सिखाना ही है कुछ. अब पहले तो होता था कि ड्राइंग पेपर पे करना है, कभी नहीं आ रहा है तो हम बच्चों को कर देते थे. ना दिस टाइम अगर मुझे अब कुछ करना है तो मैं डायरेक्टली बोर्ड पे करती हूँ. मैंने प्रोसेस किया, अब मुझे रोज फ्लावर बनाना है, मैंने किया. बच्चे कह रहे मुझे नहीं आ रहा, मैंने इरेज कर दिया. दोबारा से वो खुद ट्राई करेंगे. मूव योर हैंड लाइक दिस, स्टॉप. तो यहाँ तक पहुंचे, मैं उनका वेट करती हूँ. देन आई विल गो टू नेक्स्ट, गो लाइक दिस. ओके, नाउ यू कैन गो डाउन. इज इट रोज फ्लावर? तो ये हमारे बच्चे मुझे देख के कॉपी करते हैं. अभी राइट. ये तो इस तरह से मेरी जो भी मैं राइटिंग भी कराती हूँ, कैलीग्राफी भी कराती हूँ. तो सारा कुछ बोर्ड पे भी होता है, और एक दूसरा कैमरा है. अगर बच्चों को बोर्ड की राइटिंग नहीं समझ पे आई तो मैं कॉपी पे भी करके उनको बताती हूँ कि यू कैन राइट लाइक दिस, यू कैन ड्रॉ लाइक दिस. जैसे अब पेंसिल शेडिंग है तो मैं इस पे नहीं दिखा सकती कि पेंसिल शेडिंग कैसे करना है. ट्रू. तो वो मैं फिर कैमरा चेंज करके दूसरे कैमरे से करती हूँ. तो पहले तो मैं बहुत दिखा सकते हैं मैम, जस्ट अ डेमो? या क्योंकि मैं तो समझ में मुझे थोड़ा थोड़ा अब आने लगा है समझ, देन बट वो बहुत लोगों को शायद ऊपर से निकल जाए. हाँ, मैं एक और मिनट आप, आप हाँ, आपको आप लोग इतनी एफर्ट्स कर रहे हैं, तो आई वांट कि ये एफर्ट्स सबके सामने जाए, लोगों को पता लगे कि उन्नति में टीचर्स किस कदर मेहनत कर रहे हैं बच्चों के साथ. और ये कोई एक दिन की बात नहीं है, 5 साल से कर रहे हैं. अभी जैसे मेरी क्लास है, अभी मैं लेने वाली हूँ पेंसिल शेडिंग की क्लास है. तो मैंने एक ड्रॉ करा है, क्योंकि पेंसिल बहुत लाइट हैंड करना होता है. पहले मैं ये पिक्चर बच्चों को बोर्ड पे ड्रॉ कराऊंगी, लेकिन राइट. उसके बाद शेडिंग करनी है. तो अब शेडिंग करने के लिए आई विल टेक द पेंसिल लाइक दिस, एंड उसे मैंने पहले आईज की शेडिंग बतानी है कि ये आईज है, तो इसको ड्रॉ करना है, इसे हाईलाइट करना है, इसे शेडेड करना है. स्ट्रोक्स बनाने हैं आपको. स्ट्रोक्स कैसे चलाने? इन दिस वे, यू कैन मूव योर हैंड इन दिस वे. डाउन स्ट्रोक्स, दिस इज द अप स्ट्रोक्स, यू कैन मूव योर हैंड इन दिस वे. अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं कैमरा थोड़ा और जूम करती हूँ बच्चों के लिए, यू कैन सी इट. अगर आप नहीं देख पा रहे हो, यू कैन मूव योर हैंड इन दिस वे. सो उन्हें वो चीज क्लियरली समझ में आने लग जाती है कि हमें स्ट्रोक्स मूव करने हैं. फिर भी अगर वो भी उसके बाद भी नहीं समझ में आता है, कि अब जैसे बच्चे यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा, फिर मैं अलग पेपर पे, यू कैन सी, यू कैन मूव योर हैंड इन दिस वे, यू कैन होल्ड योर पेंसिल लाइक सो फार. ओके, स्ट्रोक्स चलाने हैं. तो ये बच्चों को मैं 3-4 बार कर करके प्रैक्टिस कराती हूँ. फिर वो बच्चे इस पेपर पे आके फाइनली करते हैं. तो ये राइट. है. मैम एक यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी. आई एम एन आर्टिस्ट, तो मुझे पता है कि पेंसिल को नजदीक से पकड़ने में और दूर से पकड़ने में क्या फर्क है. जी मैम. बट बाकी लोग जो आर्टिस्ट नहीं है उनको नहीं पता है. सो यस मैम. कैन यू टेल, क्योंकि आई जस्ट नोटेड आपने पेंसिल एक बार नजदीक से पकड़ी थी यस और मैम. एक बार आपने पेंसिल दूर से पकड़ी थी. यस तो क्योंकि मैं कमर्शियल आर्टिस्ट हूँ और मैं आपकी टेक्निक समझती हूँ, मैं समझ गई, बट बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे. सो इसलिए
I just want you to focus on this point कि आपने एक बार पेंसिल नजदीक से पकड़ी और एक बार दूर से क्यों पकड़ी, काफी दूर से पकड़ी आपने। एक्चुअली क्या होता है ना, हम पेंसिल से प्रेशर देते हैं, हमारा जो प्रेशर होता है, हम दूर का पेंसिल जब हमारा होता है, हमें लाइट प्रेशर करना होता है, हमारा पेंसिल लाइट प्रेशर के लिए हम थोड़ा फार पकड़ते हैं, हमें यही प्रेशर को डार्क देना होता है, तो हम पेंसिल को थोड़ा पास पकड़ के उसके बाद प्रेशर देते हैं। शेडिंग, पेंसिल शेडिंग में हमारे प्रेशर का ही इफेक्ट आता है, जो भी हम देते हैं। अगर मुझे इस तरह से हम पेंसिल दे रहे हैं, लाइट शेडिंग करनी, वेरी अप सो फार, पेंसिल को डाउन करना, ये पोर्शन यूज करना एंड डू द शेडिंग इन दिस वे। ओके, अगर आपको थोड़ा यहाँ से थोड़ा पास पकड़ के प्रेशर देंगे, दिस इज द मीडियम शेडिंग, आप शेडिंग ऐसे कर सकते हो। थोड़ा और प्रेशर दिया, उसके बाद हमें डार्क शेडिंग करनी है, तो इन दिस वे। तो हमारा चेंज होता है, प्रेशर के, पेंसिल के ऊपर प्रेशर चेंज होगा, हमारी शेडिंग चेंज होगी, दैट इज ओनली द डिफरेंसेस। तो आई होप जो देखने वाले हैं वो समझ गए होंगे कि मैम हाँ, ने, निधि अस्थाना मैम ने एक बार एक पेंसिल नजदीक से क्यों पकड़ी और एक बार पेंसिल 1.5 इंच दूर से क्यों पकड़ी। सो तो दिस विल हेल्प अदर्स आल्सो। आई बिलीव पेंसिल एक शेडिंग, थोड़ा सा फ्री लेसन मिल गया है कि शेडिंग कैसे की जाती है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, 1 मिनट मैम, जस्ट वेट। या Ranjita ma'am, can you please allow few participants to enable their या audio? डेफिनेटली, बट मेरे को यहाँ पे उनका ज्वाइनिंग का दिख नहीं रहा है। Oh no ma'am, actually they have joined. Can you enable their audio and video? हाँ, which ones please tell me। Ma'am, Nidhi Singhal ma'am, निधि सिंगल, ओके। and ma'am, mama's ma'am, my mother-in-law's ma'am, Galaxy M30, Anita Sharma. Okay, asked to unmute and Nidhi. I can't see Nidhi over here. Ekta ma'am, any help? Guidance, please. I think आपने अगर Nidhi Singhal, हाँ, I can now see her. Nidhi Singhal, I've asked to unmute. आपके एंड से अनम्यूट करना पड़ेगा, और अगर नहीं हो रहा तो आई वुड रिक्वेस्ट की ड्रॉप आउट एंड ड्रॉप बैक इन। I think they haven't connected with their Re- camera and audio. हाँ, they need to drop out and drop back, connect back in and I'll let them in. वो या तो कहीं पे जैम हो गया है, बिकॉज ये अभी हमारे बच्चों ने किया था जन्माष्टमी पे, दिस ड्राइंग। मैम एक सेकंड में पिन कर रही हूँ। हाँ जी, आई थिंक मैं भी फ्रेश हूँ। हेलो, हाँ, आप फ्रीज तो नहीं थे। मुझे यहाँ से लग रहा है दिस वन इज कृष्ण जन्माष्टमी पे बच्चों ने पेंसिल शेडिंग की थी, द कृष्णास पिक्चर, राइट। तो ये बनाया था। तो हाँ, यू कैन सी मी, आई थिंक आप मुझे देख नहीं पा रहे हो ना। नहीं, अभी नहीं देख पा रही हूँ। या नाउ आई कैन सी यू, वेट। नाउ या नाउ आई कैन सी यू। तो बेसिकली मैं सबको सिखाती हूँ ऑयल पेस्टल, पोस्टर कलर और पेंसिल शेडिंग्स, नॉर्मल कलर, स्मॉल बच्चों को। मेरे पास अराउंड 3.5 years के भी बच्चे आते हैं, तो उन सारे बच्चों की सारे ड्राइंग्स कराती हूँ। पहले मुझे लग नहीं रहा था कि मैं ऑनलाइन ये करा पाऊंगी, बच्चे इतने छोटे बच्चों को टैकल कर पाऊंगी और मैं क्लास ले भी पाऊंगी। लेकिन हाँ, ये स्टार्ट करा और खासकर पता नहीं बच्चों ने इतना इंटरेस्ट दिखाया कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं आई फील गुड। तो मैं बोले चलो, जब बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं तो मैं कुछ ना कुछ चेंज करती रहती हूँ, मैं खुद भी सीखती रहती हूँ और कुछ उनको भी नया सिखाती रहती हूँ। रंजीता तो मैम, मैं एक बात हाँ। बताना चाहूंगी कि निधि अस्थाना मैम की क्लास में किसी का बैटरी डाउन नहीं होगी, किसी का इंटरनेट खत्म होगा, सबका मतलब काम एकदम टिच। और हमारी क्लास में हमें होमवर्क दे दो बेटा टाइम से लॉग इन कर लो बेटा, हमें आगे भी बच्चों को पढ़ाना है। मैंने भगवान से मैम ये की विनती है कि अगले जन्म में मैं आर्ट टीचर बनूं। सीरियसली, टीचर हु इज लव्ड बाय ऑल। ट्रू एंड क्रिएटिविटी का एक अपना ही मजा होता है, इट यस, इज एक्चुअली स्ट्रेस ब्रेकर। जो बिल्कुल पेंटिंग करते हैं या गार्डनिंग करते हैं, किसी भी फॉर्म की क्रिएटिविटी करते हैं, they can really, like, I would say that they are blessed. They really know how to break out of that routine and of the stress of the life. So निधि सिंघल मैम, आप आ चुके हैं, आप अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज।
एंड वीडियो भी ऑन करना पड़ेगा बिकॉज आपका वीडियो मुझे दिख नहीं रहा है. वीडियो इज ऑल्सो ऑफ. गैलेक्सी वाला जो था आपने कहा था शरीन, मुझे वो दिख नहीं रहे हैं. निधि सिंगल मैम, I can see her and I've asked her to unmute, पर वहां से हो नहीं रहा उनके साइड से. Ma'am, I think you also need to do some settings. What settings? I will just see. And because of Nidhi ma'am and Mama both are trying. हाँ, मेरे को उषा मैम में नहीं दिखाई दे रहे हैं. अब Ma'am, I am talking about ma'am, my mother-in-law ma'am. She is. अच्छा, हाँ, पर उनका तो मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा है. No ma'am. पहले दिखाई दे रहे थे गैलेक्सी फोन का, अब दिखाई ही नहीं दे रहे हैं. दे आर नॉट इन द रूम. No ma'am, Anita Sharma ma'am. आप देखिए ma'am. अनीता शर्मा, यस. यहाँ से मैं आस्क टू अनम्यूट कर रही हूँ. मेरे तरफ से बिल्कुल क्लियर है उनका. लेट मी सी व्हाट आई कैन डू. यहाँ से मेरे तरफ से बिल्कुल क्लियर है. आई डोंट नो व्हाई. कैन दे चेंज द मोबाइल? कैन दे चेंज द मोबाइल और लाइक Device. device? Can they change the device? Sometimes it could be a device problem also. शायद सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि बाकी लोग की ऑडियो अनम्यूट है तो उनकी म्यूट नहीं हो सकती है. जो कभी कभी कोई डिवाइस को सपोर्ट नहीं करता है. एक बार चेंज करके कर सकते हैं. अनीता शर्मा, आद्या वर्षने, प्रतिभा शर्मा, निधि सिंगल एंड अदिति श्रीवास्तव, इन सब का म्यूट है और ऑडियो माने वीडियो ऑडियो दोनों बंद है. मेरे यहाँ से मैंने सारे इनेबल करके रखा हुआ है. Actually, these people are pillars of Unnati. I know. I had read out their name and मेरे यहाँ से I am sending the messages out to them. But I am unable to see them. जब तक वो ज्वाइन करते हैं तब तक एकता मैम से बात कर लेते हैं. एटलीस्ट उतना गैप नहीं आएगा. एकता मैम जी कैसे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस ऑन योर अवार्ड. नेशन बिल्डर्स हैं आप लोग. बच्चों को सिखाते हैं, हम जैसों को भी सिखाते हैं कि फाइनेंस क्या है. माने कमाना तो हर कोई जानता है, बट फाइनेंस को कायदे से यूज करना, सही जगह डालना और ऑप्टिमम जिसको कहते हैं ना उसमें बेनिफिट लेना, ये हर किसी को नहीं आता. कमा तो लेते हैं लोग. अगर मैं बोलूं कि इंडिपेंडेंट है, हम कमाना जानते हैं तो हम कमा लेते हैं, बट वो कमाई हुई धन और पूंजी को पॉजिटिवली इन्वेस्ट करना सो दैट लॉस ना जाए, पैसा मल्टीप्लाई करे और ऐसी जगह पे डाला जाए जहां पे वी डोंट हैव टेंशंस. ये सीखने वाली चीज है और ये मुझे भी नहीं आती. अभी सीख सकते हैं, सब लोग सीख सकते हैं. Everybody can learn. Thank you so much for your kind words, but I think you two are doing a commendable job, and it's a great initiative to have Unnati School of Learning here. They are also doing a great job. So I don't know why Shireen wanted me to be here. What am I here doing among so many teachers? I'm not a teacher. So I'm scared. What question are you going to ask me? नथिंग लाइक दैट. मैं पर आपसे ये पूछना चाहूंगी, जैसे उन्नति के बच्चे आपके प्लेटफॉर्म पे आते हैं एंड परफॉर्म करते हैं, सो लाइक मदरहुड क्लब में मदर्स आई थी, किडो मेंटरिंग में भी लाइक यू हैड दोस चिल्ड्रन परफॉर्मिंग. सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस विद दोस चिल्ड्रन एंड हाउ डू यू थिंक लाइक उन्नति से उन बच्चों को क्या, बिकॉज आप मेरे जैसे हो, यू आर नॉट इनटू उन्नति बट
you can support उन्नति. So हमको, मेरे को, आपको कुछ तो पॉजिटिव दिखता है ना वहाँ पे, तभी तो हम सपोर्ट करने के लिए भी तैयार है, तभी हमको अच्छा भी लगता है इनके साथ, तभी हम अपने प्लेटफॉर्म खोल देते हैं इनके लिए कि दरवाजे खुले, आ जाइए. So आपको ऐसा क्या दिखा उन्नति में? Okay, thank you. That's a brilliant question, and I will love to answer this from my heart. So I think I met Shireen about 2 years back in 2019 in a felicitation program where I wasn't the person who was felicitated, but my mother was. And I think since she was not here, so I was receiving the award on her behalf. Mhm. And that's where Shireen and we just spoke for about 5 minutes. And then I think last year, World Literacy Day, where we actually connected and we had hosted her on a platform that I was part of. And then I understood about Unnati. So Unnati was teaching kids, I knew about it. And as a child myself, I have always been inclined to teaching. एंड क्योंकि फौजी की बेटी हूँ तो बड़े बड़े घर मिलते थे रहने के लिए, गार्डन्स होते थे, तो ऐसा कोई ईंट पत्थर नहीं था जिसको मैंने ABCD 1 2 3 4 नहीं सिखाया, या जिसको डांट लगाई कि तुम पढ़ नहीं रहे हो. एंड ऑल माय टॉयज वर आल्सो स्कोल्डेड लेफ्ट राइट एंड सेंटर फ्रॉम अ वेरी यंग एज. सो I think it was in the lockdown when I reached out to Shireen that I would like to be a part of Unnati, and I would like to work for the Unnati of Unnati. And how we will do it, I don't know, but I want to bring it more in the forefront so that people know about it, and there are more students who can benefit, and there are more women and men also can come forward to participate in providing education to children. And my conversation with Shireen has always been more non-scholastic than scholastic, because I know for scholastic, she has a amazing range of teachers from every subject in terms of knowledge and experience, from Usha ji to Anita ji to all the others. Kanchan is there teaching science. Nidhi Asthana is teaching your art, and a lot of things. And I am also part of their groups. I get a lot of updates what they are doing. My intention, Ranjita, is very simple: that education or the learning in any form is not a function of the gender or the strata that a person comes from. Everybody has to get a level play. We, as so called privileged people, during our growing years, got enough and more opportunities, but we still did not get as many opportunities as we deserved it, because we didn't come from a celebrity background. At least I didn't come from. फौजी के बच्चे थे, जगह जगह घूमते थे, हर 3 साल के बाद जाते थे, तो जो करते थे अपने बलबूते पे करते थे. कहीं अगर गलती से भी, if the father was a part of the of that division where the school came under, we were always told you don't have to go tom-tomming about it, that your father is also part of that thing. Or my mother was also a teacher, so she's also been teaching kids. There are about 5 kids who she teaches. And I felt that all these kids need to have a level playing platform. So I offered Shireen that I will do the marketing for you in the corporate parlance, if I can put it. And if ever there is some way that we could do something monetarily, because that is where sometimes the buck stops. It's the buck which stops the buck happening. So we did do some small fundraising through Motherhood Club for kids for their books. We had a member from our platform who very generously sent about 17 boxes of stationery to my house, which reached out to all these kids and a couple of other kids also. So the idea is, if my daughter can participate somewhere, why cannot these kids? True. And as far as possible, I would bring these opportunities to these kids, whether they are from Unnati, we have kids from other areas also, so that they don't feel that they didn't get the chance. Because, and let me tell you, as you rightly said that, and these kids have more hunger than we privileged ones, because they don't have the resources. True. So if we could be that medium to make these resources reach them, perhaps the divide that is there in the strata can be reduced. The theme for this year is of talking about the digital divide. It always existed, Yeah. right? But forget the digital divide. Unless and until we
bridge the divide which is Social actually divide. there, the Yeah. physical divide which is there. I don't think we can ever bridge any other divides before we bridge that. Actually, we are facing physical divides, we are facing social divides, जो कहते हैं ना इकोनॉमिक डिवाइड्स. देयर आर सो मेनी. इंडिया जो कि इतनी सारी लैंग्वेजेस है, उतनी सारी डिवाइड्स भी हैं हमारे पास. एंड somehow through people like you, through people like Unnati, there is a bridge. एक ब्रिज बन जाता है उस डिवाइड को कम करने का. True. So that is what I really liked about when Shireen told me about Unnati. तो मुझे यही चीज सबसे अच्छी लगी कि what better way to bridge the divide, Absolutely. So I can see Neetu Varshney ma'am over here. निधि सिंगल मैम, आप अनम्यूटेड हैं, प्लीज अगर बोलेंगे तो मुझे पता लगेगा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I can't see you. I don't know why, but I can definitely hear you. Hello, ma'am. Hello, Yeah. ma'am. Hello, ma'am. Yes, So nice to see you. बहुत ट्राई कर रहे थे आपको लाने का. ma'am. हम जहाँ चाहे वहाँ रहा है. बिल्कुल. Yes, ma'am. मैं तो Yes, ma'am. शुरू इसी से किया था. Yes. जहाँ चाह है वहाँ रहा है, और उन्नति इसी चीज को लेके आगे चल रही है. So Yes, ma'am. उन्नति के लोग अगर सक्सेसफुल नहीं होंगे तो फिर और कौन होगा? So निधि मैम, आप बताइए Yes, कि ma'am. आप लोगों को इतनी डिफिकल्टीज आई हैं, बुक्स हैं, चैलेंजेस आए हैं आपके पास, तो आपने इन सब ऑब्स्टिकल्स को एक एक करके कैसे ओवरकम किया? आई एम श्योर दे वर नॉट इजी. Yes, मुश्किल ma'am. हुई होगी, और बहुत लोग तो मैं बताती हूँ कैसे करते हैं लोग. अरे यार, इतनी किताबें चाहिए होंगी, कैसे होएगा, छोड़ दो. अरे बच्चों को व्हाट्सएप से पढ़ाना पड़ेगा, नहीं हो सकता, छोड़. माने शुरू होते कॉन्सेप्ट पे ही लोग हार मान जाते हैं. तो यस मैम, लेकिन हमें अपनी होप नहीं छोड़नी थी. हमने जिन बच्चों को पकड़ा हुआ था मैम, जिन बच्चों के साथ हम जुड़े हुए थे, हम उन्हें छोड़ नहीं सकते थे मैम, और ना ही हम उन्हें छोड़ेंगे मैम, क्योंकि वो बच्चे, उनको हमसे कुछ उम्मीदें हैं कि टीचर्स हमारी अच्छी टीचर्स हैं जो हमें नॉलेज दे रही हैं, या जो हमारी एजुकेशन को हमें हर क्लास में हमें सक्सेस दिला रही हैं. मैम, उन लोगों को हमसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. और बच्चे, जैसे कि श्रीन मैम ने बताया कि उनको कॉल करते थे कि मैम हमारा क्या होगा. 10th क्लास में हमारी एक बच्ची गौरी थी पिछले साल मैम, उसको ये लगता था कि मैं कैसे पढ़ूंगी, मेरा 10th कैसे होगा, मैम प्लीज आप मुझे पढ़ाइए, मैम बुक्स नहीं है. जैसे श्रीन मैम ने ये चीज मैम बता चुकी हैं, तो मैम लेकिन हम लोगों ने अपनी होप नहीं छोड़ी. हमें ये रहा जैसे भी करना है, चाहे हमें सामने जब वो बैठते थे वो हमारे लिए इजी था पढ़ाना मैम, क्योंकि वो बच्चे हमारे सामने होते थे कि वो क्या कर रहे हैं, वो सब हम बिल्कुल सामने से देख पाते थे मैम. प्रैक्टिकली हम उनको करा पाते थे, मॉनिटर कर सकते हो आप. यस मैम, हम उन्हें देख पाते थे. लेकिन आज की डेट में हम कोशिश हमारी यही रहती है कि हम उन्हें शायद उससे ज्यादा अच्छी तरह हम उनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं जितना कि वो हमारे सामने होते थे. हमें ये लगता है कि हम कैसे भी उन्हें प्रैक्टिकली घर से रिलेटेड या कोई भी एग्जाम्पल इस तरह का दें जो उनको समझ में आ जाए, वो कॉन्सेप्ट कि बेटा ये चीज इस तरह से होगी मैम. यही हमें एग्जांपल दे सकते हैं, जस्ट लाइक वन ऑफ द फ्यू एग्जांपल, जैसे आप प्रैक्टिकली घर के साथ चीज रिलेट करके जैसे आप कराते हो उनको. हाँ जी मैम, एकदम मैम नहीं, आपने एकदम क्वेश्चन किया था एकदम से. आप 2 मिनट सोच लीजिए, something recent that you've done. हाँ जी मैम, मैं गौरी को ही कई बार बोल देती थी कि कोई भी चीज होती थी तो मैं उसको कहती थी कि बेटा मान लीजिए किसी ने कोई सफलता प्राप्त की है, तो मैं उसको कहती थी, जैसे उसको मैं जीवनी पढ़ाती थी मैम हिंदी में, तो मैं उसको कहती थी कि इन्होंने देखो कितनी गरीबी से ये निकले हैं ये वाले राइटर, और इन्होंने ऐसे देखो शिक्षा प्राप्त की, या ऐसे किया वैसे किया. तो मैं उसको कहती थी बेटा आप लोगों के लिए भी कुछ मुश्किल नहीं है, कल को आप अगर ये चीज कर लो तो आपको कितना अच्छा लगेगा. आपके अगर आज आप पढ़ोगे और आपके अगर 80% नंबर आपके आ जाए तो आप खुशी होगी. आपको खुशी क्या चीज होती है उसको वो मैं बताती थी कि सबसे ज्यादा आपको किस चीज से खुशी होगी. अगर आपके 40% नंबर आए या आपके 80% आए बेटा, तो आपको जो चीज की पता ही नहीं है कि मेरा ये चीज आ जाएगा, और आपको विश्वास नहीं है और उससे ज्यादा आप प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको उस चीज की खुशी बहुत ज्यादा होती है. तो बेटा आपको लगता है कि आपके 80% नंबर आ जाएंगे इस कोविड टाइम में, आप जैसे हमसे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में, तो वो कहती थी मैम बहुत मुश्किल है, और अगर आ गया तो वो खुशी सबसे बड़ी खुशी होगी. और मैम शी गॉट 80% नंबर मैम, 84%. तो मैंने कहा यस मैम,
तो मैम ये सारी बड़ा मेहनत निधि मैम की, बिकॉज निधि मैम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से है और गौरी भी जो है वो हिंदी मीडियम स्कूल से अपनी स्कूलिंग कर रही है, तो सिर्फ होल सोल मैम सिर्फ निधि मैम ही उसको नहीं मैम, देख रही ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। श्रीन मैम फर्स्ट हमारी तो जो मतलब जहां से हम लोगों ने शुरुआत किया वो श्रीन मैम के उससे किया मैम, क्योंकि हम लोग मैं मतलब पढ़ाती थी लेकिन मेरा इतना बड़ा वो नहीं था जितना मैम का, तो मतलब एक स्ट्रेंथ मैम ने इतनी बड़ी कर ली है वो कि मैम मतलब मैम ही है जो हमें, हम उनके पीछे पीछे चलते हैं बस। हमें ये लगता है कि मतलब वो जो सोच सकती हैं वो हम सर सोच नहीं सकते। हम पढ़ा सकते हैं बच्चों को, मैं मतलब पढ़ाने के लिए ऑलवेज रेडी, चाहे कुछ भी हो घर में रह के, जबकि ज्यादा टाइम हमें मतलब घर को भी देना पड़ रहा है इस पेंडेमिक में मैम, या जो भी हमारा ये वाला टाइम गया है अभी कोरोना टाइम में, तो उसमें घर को भी देखना होता है, हर चीज मैनेज करनी होती है। लेकिन फिर भी हम शायद घर को थोड़ा बहुत अवॉइड करके हम अपने बच्चों को उसमें ये सोचते हैं कि शायद इन बच्चों की क्लासेस ले लें, क्योंकि उसमें हमें टाइम भी उन बच्चों को नॉर्मल टाइमिंग से जो वो हमारे घर में आते थे उससे ज्यादा देना पड़ता है, क्योंकि इंडिविजुअली देना पड़ता है, हर एक बच्चे के ऊपर अलग अटेंशन देनी पड़ती है। आप एक टाइम में 2 बच्चों को नहीं पढ़ा सकते मैम। अगर आपके सेम सेम ही है सब्जेक्ट तो हम ले सकते हैं 2 बच्चों को, इससे ज्यादा भी नहीं ऑनलाइन में। लेकिन ऑफलाइन में आप के आगे अगर 10 बच्चे बैठे हैं तो आप उनको उनका वर्क भी देख सकते हो। 2 बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, 6 बच्चे आपके काम कर रहे हैं, बट ऑनलाइन में आप ये सब चीजें नहीं कर सकते। मैम ऑनलाइन आपके साथ जैसे सारे बच्चे तो अलग अलग एज ग्रुप के भी होंगे यस ना, मैम, केवल अलग अलग एक एज क्लासेस ग्रुप भी के अलग तो है होंगे मैम। नहीं। यस मैम, हाँ जी मैम, अलग अलग क्लासेस, अलग अलग स्कूल, अलग अलग मतलब बच्चे सब अलग अलग क्लासेस के हैं, तो सबको अलग ही पढ़ाना है, सबको तो जो ये भी तो कुछ बहुत ही पढ़ाना बड़ा है। चैलेंज हो गया मैम यस मैम, ऑनलाइन, बिकॉज हाँ जी। ऑफलाइन तो वो चलिए आप चलते चलते चले गए, बच्चे की कॉपी में झांक लिया, देख लिया, टाइम बता पीरियड दिया। बहुत बड़ा हो गया है, मतलब हम लोगों की सिटिंग भी ज्यादा है, टाइम भी हमें ज्यादा देना। अगर हम पहले 3 घंटे में अपने बच्चे कवर मतलब सब बच्चों को हम सिखा देते थे, आज हमें उसके लिए 5 घंटे देने पड़ते हैं मैम। मतलब उसमें भी सही बात। हमें लगता है कि हम कम दे रहे हैं शायद, मतलब अगर हाफ एन आवर हम एक बच्चे को देते हैं मैम, तो उसके बाद भी हमें लगता है कि जैसे कोई 9th का बच्चा है 10th का, तो वो हमारे लिए मतलब उस पर फोकस करना बहुत ज्यादा, मतलब करना सभी बच्चों पे, बट उसका लगता है कि उस बच्चे को हर चीज डे टू डे क्लियर होनी चाहिए, कल पे हमें नहीं छोड़नी है उसकी कोई भी चीज। तो मैम मतलब अंदर से यही उम्मीद होती है कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा उन्हें सफलता प्राप्त हो और उन्हें ढंग से हम करा दें, कोई भी क्लास उनकी मिस ना हो। चाहे उसके लिए मतलब हमें बहुत ही हमारी कोई मजबूरी होती है तो शायद हम तब जाके कहीं कोई क्लास मिस करते होंगे उनकी, अदरवाइज हमें ये रहता है कि अगर हम संडे को भी क्लास ले पाए तो हम उनकी क्लास ले लें मैम। चलिए मतलब दैट्स ऑसम एक्चुअली। अनीता शर्मा मैम, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? एक्चुअली मुझे पता लग जाएगा कि आप हैं उधर। actually mama is there ma'am, but she's not able to change her device ma'am. ओ ओ वो बोल अच्छा अनम्यूट भी नहीं कर पा रहे ना, Yes ma'am, सो but she's able to listen to the whole thing. she is able to listen to it. Oh, great. Then I would suggest one thing, Shireen, if you could, like, you know, later on, Anita ji could make a small video and share it with us. Ma'am, that can be done. है ना, अभी वो नहीं आ पा रही, बट अगर एक वीडियो बना के इफ शी कैन शेयर इट विद अस, basically about the challenges and how she was involved and, like, you know, about the achievements right from the, जो कहते हैं ना, बीज से लेके अब पौधा बन चुका है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो जर्नी है उन्नति का, तो if like something like this, if she could share, then we would love to have it, and I would love to air it also on my platform. That is like, because अभी वो नहीं दिख पा रही मुझे इधर, she is unable to join. मैंने join तो कर गई, but I can't see or hear her. तो नीतू वर्षने मैम आप है उधर? नीतू मैम, can you unmute yourself? नीतू मैम आप अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज। नीतू मैम, कैन यू हियर मी? हाँ, अनम्यूट। ओ ओ, मेरे यहाँ से हो रहा है, बट यहाँ से अनम्यूट नहीं मैं कर पा रही हूँ आपको। आई कैन ओनली आस्क यू टू अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. या Hello, फाइनली, ma'am. हेलो मैम, गुड इवनिंग। एंड जैसा मैं आपको बताऊंगी कि अभी श्रीन मैम ने बताया, निधि मैम ने, कि मैं अभी जस्ट ज्वाइन कर रही हूँ 3 से 4 महीने पहले, बट मैंने
मेरी फ्रेंड्स जो जिनके मतलब बिजनेस या मेरी फ्रेंड्स या जिनके हस्बैंड के काम चले गए, उनके बच्चों के लिए ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो मैंने धीरे धीरे मतलब ऐसे ही घर में पढ़ाना शुरू किया कि कोई बात नहीं, 1 घंटा मैं ऐसे निकाल दूंगी। ऐसे ही साथ में मेरा मतलब मेरी बेटी है, वो भी देने लगी कि थोड़ा सा मम्मा मैं भी हेल्प कर दूंगी, छोटे मतलब बच्चे हैं उनको भी पढ़ा दूंगी। तो हम लोग ऐसे ही, बट एक बार मैम से ऐसे ही बात होने लगी। मैम ने बोला कि मैम अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आप उन्नति के साथ जुड़ जाइए, आप और बच्चों को भी। तो उसके साथ मैं लगने लगी। मैम को लगा कि भाई मैं करा सकती हूँ, बट मुझे मैम मैथ्स कराती हूँ मैं, बट मैथ्स में इतनी प्रॉब्लम आती है और अब That's फोन कैमरा ना मेरे पास बोर्ड है, मैं इस तरीके से नहीं करा पाती, बट फिर भी पूरी कोशिश करती हूँ कि एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाऊं, फिर उसको दोबारा रिपीट कराऊं, टेस्ट बना कर दूं। मतलब बच्चों को पूरी तरीके से खुश रखने के लिए और समझ में आए उसके लिए हम पूरी कोशिश करती हूँ। बट अच्छा लगता है और मैम के साथ जुड़ के तो बहुत अच्छा लगा। 3 या सबसे 4 पहले तो महीने मैम आप मैथ्स पढ़ाते हैं, ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू, बिकॉज थैंक यू मैथ्स में तो मैं खुद रेंगते रेंगते पास होती थी। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। एक्चुअली My mother used to tell me when I gave the board exams, my mother told me very honestly कि बेटा अगर फेल हो गए ना तो घर से भाग मत जाना, घर लौटाना, मैं कुछ नहीं बोलूंगी आपको। और अगर आप पास हो जाते हो मैथ्स में, मैंने मैथ्स में पास तो मैं बोर्ड में पास, ये वाली हालत है। तो मम्मी ने कहा था बेटा मिठाई का थैला ले आना, तुम्हारे कार पार्किंग से लेके 2nd फ्लोर तक चढ़ने तक आई वुड नॉट बी एबल टू कंटेन माय एक्साइटमेंट। तो नीचे से ही थैला दिखा देना कि बेटा तू पास हो गई। I was that bad in maths, and as I won't say I'm still good. बट मैम I'm देखा मैंने better, बहुत but बच्चे ना भागते हैं मैथ्स के, ऐसा लगता है कि नहीं मैथ्स ना पढ़ने को मिले, लेकिन जितना भी मैथ्स में प्रैक्टिस चाहिए ना उतना किसी और सब्जेक्ट में नहीं चाहिए। आप True. देखो इंग्लिश, हिंदी या आप साइंस, इन सब सब्जेक्ट्स में आपको सिर्फ लर्निंग पावर अच्छी हो या कैचिंग पावर, मैथ्स में आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको सामने आएगा कि इंग्लिश को सारे तो ऐसा ना क्वेश्चन। मैम, अगर हम इंग्लिश को भी डेली प्रैक्टिस चाहिए, बट क्या होता जी है जी कि अगर आप 1 दिन 2 दिन नहीं भी करते हो तो ठीक है, 3rd डे यू कैन हाँ मेक अ चल पॉइंट, जाएगा, लैंग्वेज है। Because we बट keep मैथ्स speaking and talking, like, you know, so somehow, यस यस somewhere यस it makes up for the deficit. But maths, I believe, like my father used to tell me कि रोज अगर नहीं किया तो हाथ से निकल जाएगा। एक्जेक्टली यही सीन मतलब आजकल के बच्चों के साथ है। और मैम जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि ऑनलाइन में कितनी प्रॉब्लम हो रही है। ऑनलाइन में मैथ्स के लिए ये प्रॉब्लम है कि वो बच्चे जो है प्रैक्टिस करना नहीं चाहते हैं। मैम ने भी आप बताया कि प्रतिमा मैम ने कि लिखने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहे हैं। ऐसे ही मैथ्स के लिए भी ना इतनी प्रॉब्लम मतलब कर रहे हैं कि 2 या 4 क्वेश्चन दो तो उसमें से एक ही क्वेश्चन होता है कि लिखना नहीं चाहते हैं, मतलब करना नहीं चाहते हैं। वो भी आप कोई भी सब्जेक्ट की तरह, अगर आप मैं बोल रही हूँ तो सुन करके समझना चाहते हैं, सुनना नहीं है। ये हम मैं बार बार समझाती हूँ कि लिखना है। मेरा कैमरा मेरी कॉपी की तरफ रहता है और वो बाद में जब मैं पूरा समझा लेती हूँ उसको तब फेस टू फेस लाती हूँ कि अब तुम ये क्वेश्चन को अपनी मतलब उससे करो, मैं आपको सेंड करूंगी। फिर ये इस तरीके से पॉसिबल हो रहा है मैम मैथ्स कराना। बहुत Right. टफ हो रहा है कि मैथ्स में कुछ प्रॉब्लम ऐसे होती हैं कि समझा ही नहीं पाती। जब तक आई कांटेक्ट नहीं है आप बच्चे को समझा नहीं पाओगे। बट ठीक है, कर रहे हैं, फिर भी बहुत अच्छे कर रहे मैम हैं आप उनके लोग बच्चे। लाइक व्हाट काइंड ऑफ इंसेंटिव, स्पेशली एज अ मैथ्स टीचर, लैंग्वेज टीचर के बाद तो बहुत इंसेंटिव्स हैं, but maths teachers especially teaching online without books and copies, and it's not कि आपके पास सारे के सारे 7 साल के, सारे के सारे 14 साल के बच्चे बैठे हैं सब एक ही क्लास के। I'm sure they're all of different classes, different age, who have got different understanding or concept problems. So like you know, हम लोग जैसे reward and reinforcement करते हैं, languages में we do that reward and reinforcement. So how are you, like it must be very tough, that is why I'm asking you. मैम टफ तो बहुत है, लेकिन अभी अगर मैं ये इस टाइम पे बोलूं कि ऑनलाइन क्लासेस में मैथ्स के लिए ये प्रॉब्लम, एक तो एनसीईआरटी बुक में बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करा पाती। Agree. यू नो डैट की Yeah. एक्चुअली क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से बना करके उसको देना है तो
बच्चे को क्या समझ में आएगा कि ये मैम ने सिर्फ नंबर चेंज करे हैं, संख्या चेंज कर दी है और वो मैम ने दे दिया। लेकिन उसमें आप क्या देखोगे कि बच्चे को उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो पीछे वाला क्वेश्चन देख करके उसको कर Look रहा है। backward, go forward. हाँ, वो पहले वाले को देख करके ऐसे उसको इस तरीके से पूरी कोशिश करती हूँ कराने की कि आप ये वाले क्वेश्चन में सिर्फ मैंने नंबर चेंज किया है, आपको नंबर चेंज करके करना है। तो वो समझ जाते हैं कि इस तरीके से। अब मतलब कोशिश पूरी रहती है कि अदर क्वेश्चंस को भी मैं उनके साथ अदर बुक्स के साथ कराने की कोशिश करूँ। लेकिन ऑनलाइन में मैम 5 से 6 क्वेश्चन डेली हो पाते हैं और 40 या 45 मिनट्स क्लास लेती हूँ। उसके अलावा आप सोच भी सकते हैं कि मैम स्क्रीन में ज्यादा देखने से प्रॉब्लम भी शुरू होने लगती है आईज में। राइट, एंड तो आप बच्चों सारा को टाइम खुद भी मॉनिटर नहीं कर सकते, आई कांटेक्ट बच्चों के साथ बनता नहीं है, एंड उसमें वो थोड़ी बदमाशी भी करते होंगे ऑब्वियसली, जो कहते हैं ना नजर हटी दुर्घटना घटी, आप कॉपी पे फोकस कर रहे हो, वो वहां पे। यस 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 मैम। बट अभी मुझे श्री मैम को थैंक यू बोलना होगा कि मैम ने मुझे उन्नति के साथ जोड़ करके मैम बहुत अच्छा किया है। यस, उन्नति इज Thank you, डेफिनेटली ma'am. डूइंग अ वेरी बिग जॉब, लाइक आगे मैं ये यहाँ मैम के साथ और आप सबके साथ हमेशा जुड़ा रहना चाहूंगी कि कुछ कुछ करती रहूं थोड़ा थोड़ा। ट्रू थैंक मैम, यू सो मच। थैंक यू मैम। वेलकम मैम। अभी लाइक लेट्स सी, वी हैव ओवर हियर प्रतिभा शर्मा मैम आ चुके हैं, कंचन मैम नहीं आए हैं। कंचन मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Excuse me, ma'am. यस Excuse मैम, me. Ma'am, I am leaving because I have class. जस्ट अ मिनट मैम, कौन है? मैं निधि अस्थाना। राइट मैम, प्लीज विल टेक यू। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और मिलके। थैंक यू सब। थैंक यू Pleasure एवरीवन। meeting you, ma'am. Pleasure ओके meeting मैम, you. All बाय the मैम, best for your बाय। future endeavors too. थैंक यू मैम, बाय बाय। Bye bye. Right. Kanchan ma'am. Hello, ma'am. Hello. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening to all. So, Um, which subject are you teaching, ma'am? Ma'am, I'm teaching science, and I have recently joined Unnati, and all thanks to go to Ekta ma'am and Shreen ma'am for giving me an opportunity to help the students. And I believe that quality education is must for all. And by giving this opportunity to me, matlab, they have given me an opportunity to help a social cause. सही मैम। तो आप साइंस कैसे पढ़ा रहे हैं? मैथ्स का तो मैंने देख लिया, मैंने आर्ट्स भी देख लिया। साइंस में तो एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं, लर्निंग बाय डूइंग होता है। क्लास में तो हम लोग लिटरली क्लास में खड़े होके एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाते थे, लाइक यू नो, कभी बिग बैचेस में, कभी स्मॉल बैचेस में। सो हाउ आर यू हैंडलिंग दैट ओवर हियर? Ma'am, science में online teaching has become difficult. First of all, the students of Unnati, as they have less knowledge of English, because science में English की knowledge बहुत, क्योंकि English medium है उनका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि मुझे एक एक चीज पहले उनको हिंदी में समझानी पड़ती है, उनकी प्रोनाउंसिएशन भी ठीक करनी पड़ती है, बिकॉज साइंस में प्रोनाउंसिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो उनकी प्रोनाउंसिएशन ठीक करनी पड़ती है, उनको कैसे बोलना है और कैसे समझना है टॉपिक पर, उसे हिंदी में पहले समझाना पड़ता है और फिर उसे इंग्लिश में लर्न कराना पड़ता है, बिकॉज देन दे हैव टू राइट द आंसर, दे हैव टू राइट इन इंग्लिश, बट दे कैन नॉट ग्रैस्प। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो दे कैन, बिकॉज टू माय अदर स्टूडेंट्स व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू टेल देम कि आप अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज, बट नाउ द स्टूडेंट्स इन दिस Unnati, the problem is they don't have an English background, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। और एक्सपेरिमेंट्स की बात हो जाती है तो व्हेन वी आर नॉट फेस टू फेस, मेरे पास होंगे तो फिर मैं उनको दिखा सकती हूँ कि कौन फ्लोट कर रहा है, कौन सिंक कर रहा है, क्या मेटल है, क्या नॉन मेटल है, थोड़ा सा। तो इस चीज के लिए मैं मेरा एक ही बेटे को पढ़ाती हूँ, अनमोल को, तो वो बहुत ही क्यूट है। तो मैं उसको बोलती हूँ कि बेटा पहले आप जो मैं बोल रही हूँ उसको विजुअलाइज करो, अब आप पिक्चर बनाओ अपने माइंड में, क्योंकि मैम साइंस तो हर कोई पढ़ जाता है बट आगे चल के हम भूल जाते हैं और कॉन्सेप्ट याद नहीं रहते हैं। तो मैं उसको एक चीज को कम से कम 10 बार बताती हूँ कि मैं आगे नहीं बढ़ूंगी जब तक तुम इस चीज को विजुअलाइज नहीं करोगे, तुम्हें फोटो नहीं दिखने लग जाए उस चीज।
जो मैं समझा रही हूँ, मेटल है या नॉन मेटल है, आप माइंड में रिकॉग्नाइज करोगे तभी आप नहीं भूलोगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि अगर फेस टू फेस हम नहीं कर रहे हैं तो, बट मैं ट्राई करती हूँ कि कोई भी कंसेप्ट जो है ना छूट ना जाए और उसको क्लैरिटी हो। True. Right. So, Shireen ma'am, I have all the Aditi Srivastava ma'am. Is she there? Yes, ma'am, she is there. Yeah. Yes, Please ma'am. unmute yourself, ma'am. Good. आपका वीडियो ऑन हो सकता है, नहीं भी हो सकता तो कोई दिक्कत नहीं है. But if you can, then we'd love to see you. Yes, ma'am. I'm just spinning. Right, ma'am. So, good evening, ma'am. Ma'am, अपने आप को unmute कर लीजिए, please. Okay, can you hear me? Am I Yes, audible ma'am. to you? Yeah, you're audible now. Yeah, actually, I have joined 3 months back only. Thanks to Shireen ma'am and Neetu. Neetu introduced me to Shireen ma'am. Though I have been in the teaching line since from last 10 years. I had been teaching underprivileged children at an NGO, Nai Disha, in Noida only. But during pandemic, that stopped because they were children of migrant workers. Most of them went out. Then there were some family problems also. So I joined back through Shireen in the teaching line. And I had the privilege of hosting School in Clouds. That's a TED Talk a project. You must have heard about that. During my NGO days when I was teaching there. And I liked teaching because even when we were holding School in the Clouds, it's a new concept where a question is thrown to the children and they have to find the answers themselves. And you will be amazed, ma'am, that children from all the backgrounds, who people, parents were uneducated or या उनके brothers sisters ही उनको पढ़ा रहे थे, still they wanted to know about black hole, they wanted to learn about universe, they wanted to know about different cultures of India. So And which subject are you taking? Here I am teaching English and maths to a class 6 student. Language and maths? Yeah. But ma'am, दोनों तरफ आपका means your brain is sharp enough. मेरा तो maths में. Ma'am, I teach science also till class 12. Yeah. And I teach maths also till class 8 and English also till class 12. So I have been in this line from last 10 years. So superb. I like teaching. I can only work in arts. Right? आप मेरे को science subjects दे दीजिए because I have a passion for science. I can teach science, but physics में मत जाना क्योंकि physics में numericals आते हैं, numbers आते हैं और जहाँ numbers आते हैं मैम वहाँ पे मेरा एकदम नीलबटा मैम numbers को दोस्त बना लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है. बहुत कोशिश की मैम, बिल्कुल नहीं हुआ. अब इतने साल बाद I have given up on numbers, but हाँ language is my forte and arts है, curricular activities है, ये सब enjoy करती हूँ, SST, but somehow numbers मेरे father try करते करते थक गए. My younger daughter is also like you only. She has taken history and pol science in class 12 and she is also a painter. She has taken fine arts also. Numbers तो मैम दिमाग में बहुत ज्यादा केमिकल गड़बड़ कर देते हैं, मेरे को समझ में नहीं आते. So अब उसको छोड़ ही दिया मैंने and वो एनर्जी मैंने दूसरी तरफ लगा दी है where I need not. I depend now on more of these telephones and calculators to do the job for me. अब मैं technically थोड़ा is doing harm to your mind. Yes. वो memory के लिए बहुत खराब है. आप mentally calculate करिए ना. At least plus minus तो calculator से मत करिए. मेरी बस की बात नहीं है. Four basic operations you should do on hands. या mentally. So मैम यही चीज आप कैसे अपने बच्चों को बता रहे हैं उन्नति में, लाइक मेरे जैसे होंगे बहुत सारे. मैम मैं एक्चुअली रिटन वर्क भी उनको भेजती हूँ, जैसे सब्जेक्ट प्रेडिकेट है तो मैं उनको उसको या सिंगुलर प्लूरल नाउन है तो पूरे उसका एक चैप्टर बनाकर उनको भेजती हूँ.
कि कंसेप्ट फिर उनको बोलकर बताती हूँ और उनको बोलती हूँ कि तुम मुझे पढ़ के बताओ फॉक्स का फॉक्सेस कैसे हुआ, या मैथ्स में होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। मैं खुद कम बोलती हूँ, मैं उनसे ज्यादा बुलवाती हूँ कि आपने मुझे ये चैप्टर भेजा है ना, अब आप इसे पढ़ो। तो मुझे लगता है इससे उनका रीडिंग स्किल्स भी ज्यादा अच्छे से एंड प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अच्छा होता है। और फिर जो भी जैसे वर्ड है डिफिकल्ट है, मैं उनको अंडरलाइन करवा के उसको हिंदी में उनका अर्थ लिखवाती हूँ। Right. आपको ये वर्ड आप बोलिए और फिर उसका हिंदी में अर्थ, और फिर कॉपी में दिखवाती हूँ। कॉपी में वो दिखकर फिर मुझे भेजते हैं। तो इससे क्या होगा, कभी भी उनको कोई वर्ड वो यूज करना हो या अगली बार वो वर्ड आपके चैप्टर में आता है तो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। Good. इसी तरह उनकी वोकैबुलरी भी एनहेंस होगी। और मैथ्स में भी मैं नहीं बोलती कि 1 लाख में से माइनस करके मैं दिखाऊंगी। मैं उनसे पूछती हूँ 1 लाख में कितने जीरो हैं, इतने जीरो हैं लगाओ, और अब 9478 इसमें से माइनस करके दिखाओ, मुझे आंसर बताओ। इट्स लाइक बिकॉज ऑफ माय अर्ली इयर्स दैट यू हैव टू, एक बार आपने कंसेप्ट समझा दिया, अब बच्चों को बोलो कि वो खुद उस कोशिश करें उसको आगे इस्तेमाल करने की। क्योंकि अगर हर चीज पे हम उनको बताते तो वो स्पून फीडिंग हो जाती है। अच्छा मैम 10 - 8 2 हुआ, अच्छा 10 - 8 2 हुआ, ये हुआ, तो ठीक है, हम एक टाइम पे जाके हमको एज फैसिलिटेटर बनना चाहिए। अभी तो इनिशियल ईयर्स जो हैं बच्चों के, उसमें तो ऑब्वियसली वी हैव टू प्रोवाइड देम सपोर्ट, उनके कंसेप्ट्स क्लियर करने, उनको वापस मेन स्ट्रीम में लाना है। बट आफ्टर सम टाइम वी शुड एक्ट एज अ फैसिलिटेटर। उनको बोलना है कि आप खुद करो, हम हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी गलतियां सुधारने करने के लिए, लेकिन जब तक आप खुद नहीं करोगे, खुद नहीं सीखोगे, तो आगे जिंदगी में कहाँ जाओगे। Well said, ma'am. सही बात है। तो आई वुड लाइक टू कॉल अभी अपना शिरीन को मैं दोबारा बुलाना चाहती हूँ। शिरीन मैम, निधि सिंघल मैम, आप लोग थोड़ा सा अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। यस मैम। कहाँ गए? हाँ जी मैम, मैं ये बात आपने नीतू मैम से पूछा कि हम कैसे रिवॉर्ड्स देते हैं, कैसे इंसेंटिव्स देते हैं अपने बच्चों को। तो मैम मेरा एक अंदाज है, मेरा एक स्टाइल है। मैं क्या करती हूँ, मैं बच्चों को स्माइली दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे तो मेरे पास बड़े इजीली अवेलेबल है। तो मैं उनको स्माइली दिखाती हूँ, स्टार दिखाती हूँ। और जब बच्चे कुछ गलत करते हैं, कुछ रॉन्ग करते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, बच्चों को बोलती हूँ, अच्छा देखो शिरीन मैम ना अपने हाथ पे ना एक सैड स्माइली बना रही है, बना ले, आपको खुशी मिलेगी। तो मैं बना भी देती हूँ कि ठीक है, मैम ने ना एक सैड स्माइली बना ली। तो उनको दुख होता है कि देखो शिरीन, मैंने कहा देखो अभी तक गया नहीं है, कल से ये सैड स्माइल है, आज ये हैप्पी होगा। तो मैम वो कर देते हैं वो काम। फिर मैं अपने दूसरे हाथ पे एक हैप्पी स्माइली बना देती हूँ। सो दिस इज माय वे ऑफ मोटिवेटिंग देम। एक इमोशनल कनेक्ट, लाइक एग्जैक्टली। एंड मैम जैसे साइंस, क्योंकि मैम मैं भी काफी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ एक्सेप्ट हिंदी और संस्कृत। तो मैथ्स में मैम मैं क्या करती हूँ कि जैसे मैथ्स में सॉरी साइंस में मैं क्या करती हूँ कि जैसे क्योंकि मैं प्राइमरी क्लासेस को पढ़ा रही हूँ, तो जैसे एक कंसेप्ट है फ्लोट एंड सिंक। तो मैंने एक बच्चे को पढ़ा दिया। अब मुझे खुद पढ़ाना बड़ा बोरिंग लगा। मैंने कहा अच्छा यार तेरे पास कोई बड़ा सा कंटेनर होगा? तो उसने कहा है मैम है। मैंने कहा अच्छा कुछ चीजें हो सकती है जैसे कोई पेन या कोई कॉइन। तो उसने कहा है। मैंने कहा चलो उसको डाल के मुझे दिखाओ। तो मैम शी शोड टू मी एंड शी वाज सो हैप्पी। मैंने कहा अच्छा आज तुम साइंटिस्ट बन गए हो। मैम शी बिकेम सो हैप्पी कि मैं एक साइंटिस्ट बन गई हूँ, मैं एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा रही हूँ। एंड आई वाज क्लैपिंग फॉर हर एंड दैट मोमेंट वाज फॉर मी एंड हर। So that was an achievement for both of us कि हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करा उस टाइम पे। और मैम मैं ये भी कोशिश करती हूँ जैसे कि कोई कंसेप्ट अगर नहीं समझ में आ रहा है मेरे स्टूडेंट को, तो व्हाट आई डू इज कि मैं अपना लैपटॉप ऑन करती हूँ, वीडियो उनको दिखाती हूँ, वीडियो पॉज करके, जैसे कि कोई कंसेप्ट है, कोई पॉज कर दिया, फिर उसको एक्सप्लेन करा, फिर पॉज करा, फिर एक्सप्लेन करा, फिर पॉज करा, फिर एक्सप्लेन करा। तो मैम मुझे लग रहा है कि इस कोविड टाइम में जो मेरी टीचिंग स्किल है वो बहुत ज्यादा ही एनहांस हो गई है, क्योंकि अब मैं और ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करती हूँ। मुझे लगता है मेरे को ट्रेडिशनल तरीके से नहीं, थोड़ा मॉडर्नाइज तरीके से। और मैम फिर वही वीडियोस
अपना खुद का वीडियो बना के भेजना, अपने खुद की ऑडियो बना के भेजना, हर टाइम बच्चे को कुछ एंगेज करके रखना। उनको लगता है कि अब क्या भेजेंगे शरीन मैम, कौन सा वीडियो भेजेंगे, कौन सा अपना ऑडियो भेजेंगे, अपना वीडियो भेजेंगे, तो उनको थोड़ा सा एंगेजिंग लगता है, इसीलिए मैम शायद वो करने कर पाते हैं। राइट मैम, कंचन मैम आ गई थी क्या? यस मैम, यस मैम। उन्होंने बोल लिया था ना, बिकॉज आई एम नॉट वेरी फेमिलियर विद द नेम, सो इसीलिए मैं शायद दोबारा पूछी हूँ, जस्ट टू मेक श्योर कि आपके 10 की टीम में से कोई भी ऐसा ना हो जो आए और मैं कवर ना कर। यस, नाउ आई कैन। या आज बस अनीता मैम का मुझे लग रहा है। अनीता मैम आपका अनम्यूट हुआ है फाइनली, कैन यू आप बोलिए ना कुछ। या गुड मैम, आपका अरे फिर से म्यूट हो गया। हेलो। यस मैम, प्लीज आप कुछ बोलिए मैम। अच्छा, कैन यू हियर मी? या आई कैन हियर यू मैम, आई कांट सी यू बट आई कैन हियर यू लाउड एंड क्लियर। अच्छा, थैंक यू मैम सो मच। बताइए। वेलकम मैम, एंड आई एम सो, मेरे को खुद को खराब लग रहा है, आई डोंट नो क्या टेक्निकल इशू हो रहा है, एंड वी कांट सी यू। मैंने शिरीन को एक दूसरा रास्ता बता दिया एंड आई विल बी वेटिंग फॉर दैट वीडियो टू, बट फिलहाल जब आप फाइनली अनम्यूट, अल्टीमेटली इट्स अ यूरेका की एटलीस्ट एक चीज हमारे हाथ लगी है कि वी कैन टॉक टू यू नाउ। सो मैम, कैन यू टेल मी, उन्नति के 5 साल का एक छोटे से बीज को आपने एक पौधा बना दिया, अब आई एम श्योर आप आगे भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। What Yes, are your future plans, like 5 years from now or say 10 years from now? Where do you want to see, and like you know, just एक सपना जो है ना आप लोगों ने देखा है, उसके बारे में मैं पूछ रही हूँ। ओके। एक्चुअली ये जो सपना था ना, ये सपना ऐसे स्टार्ट नहीं हुआ था। ये जो बच्चे अब प्रेजेंटली पढ़ रहे हैं, इनकी मदर्स हमारे से जुड़ी, तो मैं बिकॉज बीइंग आई मीन स्पेशल एजुकेटर और बीइंग इन अ लाइन ऑफ एजुकेशन, तो टाइम टू टाइम आई यूज्ड टू टेल देम कि भाई पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुम अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। चलो जो भी तुम्हारे साथ हुआ, वट एवर आई मीन द सर्कमस्टांसेस वर, हो गया, उनको तो नहीं हम चेंज कर सकते, बट नाउ बच्चों को पढ़ाना है, जैसे भी पॉसिबल होगा बच्चों को पढ़ाना है। तो इसका रिजल्ट ये आया कि उन्होंने सब ने अपने बच्चों को स्कूल में डाला हुआ था ऑलरेडी, चाहे वो गांव में है या शहर में आ गए, नोएडा में आ गए, बीच बीच में कई बार हो भी जाता था। तो अगर इकोनॉमिक कंडीशन नहीं भी अच्छी होती थी तो भी उनका ये होता था कि भी उन्होंने डाल दिया। एंड आई यूज्ड टू हेल्प देम इकोनॉमिकली, कभी फीस दे दिया, कभी बुक्स दिला दिया, और मोटिवेशन के लिए अगर किसी बच्चे के बहुत अच्छे नंबर आए तो उसकी हमने भाई कि इसकी बुक्स हम वो करते हैं, इसका बुक्स का खर्चा ये वो, लाइक दैट वाज, मतलब कुछ ऐसे कहीं जैसे कहते हैं ना कि बस चुपचाप ये सब हो रहा था। राइट मैम। या तो ये सब चलता रहा। मैं यहाँ पर अपने स्पेशल एजुकेशन के साथ साथ जो भी मेरी मेड्स होती थी उन बच्चों को गाइड कर दिया, पढ़ा दिया, कभी सर जरूरत हुआ। आफ्टर आई मीन शिरीन केम टू माय हाउस, शिरीन आई हमारे घर में, हम रिचा बोलते हैं उसको घर में, तो हाँ तो रिचा में पढ़ाने का बहुत पैशन है, मुझसे भी ज्यादा। तो शुरू में तो वही हुआ कि हम कहते रहे कि भी अभी आराम से कर लेना जॉब, कोई बात नहीं, बट शी स्टार्टेड आई मीन लुकिंग फॉर जॉब, और एंड आफ्टर 2 months शी गॉट द जॉब, जॉब मिल गई। फिर शी आई मीन गॉट हर फर्स्ट चाइल्ड, सारा आई हमारे घर में। तो थोड़ा सा ये हुआ कि भी अब कैसे जॉब कंटिन्यू होगी, तो वहाँ जॉब रुक गई, बट एक वो जो अंदर पैशन था ना उसके पढ़ाने का बच्चों को, वो हमेशा रहा। तो उसने ये एक जरिया ढूंढा उस चीज को, कि ये बनाया कि हमें इसको ऐसे करना है, और विदाउट जैसे कहेंगे ना आई मीन मच ऑफ थॉट, एक हमने स्टार्ट कर दिया बस इसको। अभी भी बहुत ज्यादा कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है कि हम कर रहे हैं, बट वी आर डूइंग विद होल हार्टेडली। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं उससे। अभी मैं जॉब में हूँ इसलिए थोड़ा आई मीन आई कांट गिव मच टाइम टू आई मीन दिस। जो भी है मैनेजर शिरीन इज आई मीन देयर, शी आई मीन मैनेज ऑल द थिंग्स, सारी चीजें हो रही हैं। विद गॉड विलिंग आगे भी अच्छा होगा, और लोग जुड़ेंगे, आप जैसे लोग हमसे मिलेंगे, बातें करेंगे, कुछ और नए थॉट्स आएंगे। ट्रू मैम। तो
take it up to the, I mean, higher grades and higher heights. I wish all the best for Unnati, because जो एक इतना अच्छा आप लोगों ने प्लेटफॉर्म बनाया है टू ब्रिज द ग्रेट डिवाइड. एक्चुअली दिस इज अ ग्रेट डिवाइड. इंडिया में क्या मैंने देखा है, जो गरीब है वो बहुत गरीब है, जो अमीर है वो बहुत अमीर है. गरीब को Yes. पढ़ने की चाह है पर उसके पास साधन नहीं है, अमीर Yes. के पास साधन है पर पढ़ने की चाह नहीं है. Yes, और जो ma'am. मिडिल क्लास है वो दोनों को बीच में ब्रिज नहीं कर पा रहा. सो Yes. ये जो उन्नति का जो आपने ब्रिज डाला है, एक पुल बांधा है, तो दिस इज दैट ब्रिजिंग दैट ग्रेट डिवाइड. लाइक यू नो द प्रिविलेज्ड आर रीचिंग आउट टू द अनप्रिविलेज्ड, गिविंग Yes, ma'am. फ्रॉम देयर हार्ट नॉलेज. जो मेंटर्स हैं आपके साथ जुड़े हैं, जो आप लोग खुद भी मेंटर्स हैं, एंड आप लोग जो जुड़े हो आगे लेके जाने को, दिस इज अ वेरी वेरी अनसेल्फिश move, I would say, and we need more people like you, and I would really wish you strength. Like you know, मैं चाहती हूँ कि और ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़े, और कल उन्नति उन्नति जो को कहते हैं ना, माने क्षितिज पे छा जाए, जिसको कहते हैं उन्नति ही उन्नति हो. Yes, That is yes. what is I wish for you all. Yes. ये जो नाम था ये श्री ने ही रखा था, उन्नति. और देखिए वही बात है कि लाइक माइंडेड पीपल आर ज्वाइनिंग अस. अपने आप हम किसी को इतना कंपेल भी नहीं करते हैं, पर लोग खुद जुड़ रहे हैं. और आई वांट टू थैंक एवरीवन, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सभी बहुत अच्छे हैं और सभी दिल से काम कर रहे हैं. इसीलिए ये उन्नति की उन्नति भी हो रही है. सही है. एंड बिल्कुल जैसे श्री ने कहा, आई एम फुली एग्री विद कि इस पेंडेमिक की वजह से बहुत सारी चीजें जो हैं, जो मतलब एक कहना चाहिए कि अनफॉर्चुनेट चीजें रही लाइफ में, और भी उसके साथ साथ बहुत ज्यादा अच्छी नई चीजें. चीजें. श्री ने खुद ये रियलाइज किया कि नाउ शी थिंक्स आउट ऑफ द बॉक्स. हम खुद सोचते हैं. अभी एक मैम कह रही थी कि मेरे पास, नीतू ने कहा मेरे पास बोर्ड नहीं है. अब मैंने, आई एम यूजिंग सारा बोर्ड, सारा का बोर्ड में यूज करके बच्चों को पढ़ा रही हूँ अपने स्कूल के. मैं भी मैथ्स पढ़ाती हूँ, तो ये डिफिकल्टी आती है कि मैथ्स में कैसे हम करेंगे. एंड वही होता है कि कैलकुलेशन पार्ट सारा हम बोलते हैं कि नहीं, यू डू योरसेल्फ. बच्चों से पूछते हैं आप करके बताओ, बट इट इज टाइम कंज्यूमिंग, इट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग. स्कूल में इससे ज्यादा स्पीड से काम होता है, घर में इतना स्पीड से नहीं हो रहा. तो ये सारे चैलेंजेस हैं साथ में. हाँ मैम, जैसे मैथ्स में फ्रैक्शंस हो गया, मैथ्स एंड फ्रैक्शन में आप स्कूल में एक्टिविटी कर सकते हैं, करा के तोड़ मड़ोड़ के मैथ्स लैब से आप चीजें ला के दिखा सकते हैं. यू कैन गेट एक्टिविटीज डन. पर यहाँ पे ऑनलाइन एक्टिविटी कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. सबसे पहले वो बच्चे वो सारी चीजें लाएंगे कहाँ से? फिर आपको होम फ्रेंडली चीजें देखनी पड़ेंगी, जो कि बच्चा अच्छे से आराम से बिना पैसा खर्चा करे उसको वो चीजें मिल जाए. Yes, but still everyone is, I mean, trying his or her best, using the, I mean, the resources available. ऐसा नहीं है, फिर भी जो भी है अवेलेबल करें. Right. स्कूल के बच्चों को तो हम लोग YouTube भेज देते हैं, WhatsApp पे उनको भेज देते हैं, होमवर्क भी मैं ऐसे ही भेजती हूँ. The same thing we are doing, but जहाँ रियल, I mean, थिंग और रिसोर्सेज की बात आ जाती है, यहाँ पे थोड़ा सा लैक होता है. हर बच्चे के पास स्मार्टफोन नहीं है, हर बच्चे के पास उस तरह का डिवाइस नहीं है. सो वो डिपेंड करता है. एंड द heterogeneous group, सबसे बड़ी मेन वो जो चैलेंज है वो है. हाँ. Yeah. So catering to different children of different age groups. Yes, ma'am. With different problems and different concepts at different levels, it becomes a very, very challenging task. So I would literally say hats off to Unnati, and आप लोग सब बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं. And personal thanks to Shireen, who just asked me कि मैम क्या ये हो सकता है, and I was like यार बोलो कर देंगे, क्या प्रॉब्लम है, ये सब टेक्नोलॉजी किसके लिए ली है. Yes, ma'am. For this event, for today's event, yeah, I would like to, I mean, thank you from my, I mean, core of heart. नहीं मैम, it's a privilege for me. In fact, I should thank you for coming over here. And like you know, इतने अच्छे लोगों से मिले आज, 10 लोग जो कि अपने तरीके से like you know इसमें contribute कर रहे हैं नेशन को आगे लेके. बिकॉज हर एक बच्चा जो हम शिक्षित करते हैं, हमारा जो नेशन है वो और स्ट्रॉन्ग होता है कल के लिए.
So you all are मैम आप vision जानना नहीं builders. चाहेंगे कि उन्नति क्यों हो रही है? आप लोग हो ना? नहीं मैम, क्योंकि मेरे पास माँ है। दोनों Yes. दोनों माँ है, दो अरे भाई माँ दोनों है, माँ है, दोनों तरफ लेफ्ट में भी एजुकेटेड माँ माँ है, है, राइट में भी माँ है. मतलब मैम मुझे दोनों के लेफ्ट एंड मतलब राइट। दोनों से Yes. मतलब काम मेरे को निकलवाना पड़ता है। प्लीज, बहुत प्लीडिंग करनी पड़ती है, बहुत समझाना पड़ता है, बहुत कन्विंसिंग करनी पड़ती है, कभी झगड़ा भी हो जाता है। बट मैम यही है कि अल्टीमेटली इन दोनों की ही वजह से मैं मतलब मेरे को बहुत ज्यादा और जिस strength दिन मिलती है। शिरीन तुम चुपचाप बैठ जाओगी ना, उस दिन यही दोनों तुमको खींच के खड़ा कर देंगे. नहीं और मैम स्पेशल थैंक्स बैठी क्यों हो, खड़ी हो जाओ. निधि सिंगल मैम को भी मैम, शिरीन क्योंकि हाँ, शिरीन हाँ, हैज, हाँ वो जी, कहते हैं ना जिद से जुनू तक जाना है, शिरीन हैज दैट गट्स। Good. शिरीन के पास वो है और उसी से आगे बढ़ रहा है। So with that, ma'am, thank you so much. You can all unmute yourself. Please कर लीजिए. We are just I winding I off. was trying my hard and clicking every like ना बटन की किस तरह से ये हो जाए। Finally, ma'am, आप एटलीस्ट मैं देख नहीं पाई हूँ आपको, मैं वीडियो में देख लूंगी, बट एटलीस्ट लाइक I can now I will hear surely you. send the video. Yeah, Yeah. I will surely. Thank you so much, ma'am. Thank you. So Thank you, nice talking with you. everybody, for joining. Please accept my gratitude and thanks and well wishes from my side as well as RN Talks. आप लोग आगे बढ़िए, जुड़िए और मुझे भी साथ में लेके चलिए. मेरे तरफ से जो बन पाएगा आप लोगों के लिए, मैं प्लेटफॉर्म इज ऑलवेज ओपन फॉर उन्नति. Thank you Thank very you much. so much. Thank you, ma'am. Thank Thank you. Okay, Thank you so see you. much. Bye bye. Thank you. Bye bye. Bye bye. Thank you so much. Bye. Bye bye.